Hello dear children, welcome to the class. In today's class, we'll be learning the accounting treatment of workmen compensation reserve if it is given in the balance sheet in case if there is a change in profit sharing ratio among existing partners. Now we are going to learn the concept with the help of an example. First of all, let's understand that what is workmen compensation reserve and why do we maintain it? Workmen compensation reserve is maintained to give the compensation in case a worker in the factory or in the business met with an accident. We prepare this workmen compensation reserve out of the profits of the business following the prudence concept. Now, how we are going to deal workmen compensation reserve in case of change in profit sharing ratio among existing partners? Let us understand this with the help of this question. X, Y, and Z, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2012. So the old profit sharing ratio among the partners was 5:3:2 and the new profit sharing ratio among the partners XYZ is 2:3:5. Workmen compensation reserve appears at 1200 in the balance sheet as at 31st of March 2012. Show the accounting treatment in the following alternative cases if there is no information given. Fine. If there is no other information given, that means that this workmen compensation reserve has not been used. वर्कर ने कोई क्लेम अराइज नहीं किया, वर्कर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व becomes a free reserve in the partnership. Second case, if a claim on account of workmen compensation is estimated at rupees 150 only, and you can see that in the second case, the amount of the claim is less than the amount in the reserve. See, claim is of 150 rupees and workmen compensation reserve is having the amount of rupees 1200. And in the third case, if the claim on account of workmen compensation reserve compensation is estimated at 2250. Now in this third case, the amount of compensation, that is 2250, is more than the amount in the workmen compensation reserve, that is 1200. So we are going to learn about the accounting treatment, how to deal with this workmen compensation reserve in case of partnership accounts. Now in the question, see, it is given workmen compensation reserve on the date of reconstitution of the firm is 1200. तो बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमेशा हम लाइबिलिटी साइड्स पे शो करते हैं और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, लेट मी टेल यू, फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. रीजन हमने बता ही दिया कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू गिव कॉम्पनसेशन टू द वर्कर. अगर फैक्ट्री में काम करते करते किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस और एक्सपेंसेस. अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देनी होगी. तो कॉम्पनसेशन देने के लिए प्रॉफिट्स में से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1200 का रिजर्व बनाया हुआ है. ठीक है. अब XYZ are the partners, उनकी old profit sharing ratio 5:3:2 है और new profit sharing ratio they have decided that they are going to distribute their profits in the ratio of 2:3:5. अब पहला केस as per question क्या है, no information is given, no other information is given. इसका मतलब क्या हुआ
इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। फाइन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वर्कर ने कोई क्लेम नहीं अराइज किया। अब क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो बाद में अगर ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि अगर कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ तो दिस रिजर्व विल बिकम फ्री रिजर्व। अब ये सिर्फ कॉम्पनसेशन देने के लिए यूज नहीं होगा, ये फ्री रिजर्व हो गया और पार्टनर्स इसको 1200 को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फाइन, तो मेरी एंट्री क्या बनती है? सी माय एंट्री इन फर्स्ट केस विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पे आता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सो माय एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। भाई हमने डेबिट कर दिया कितने से? 1200, and this 1200 will be distributed between the partners in their own profit sharing ratio. So we'll write to X capital account and X is going to get 1200 का कितना portion? 5 upon 10, that means 600. Then to Y's capital account, Y's capital account will be credited by 1200 into 3 upon 10, which is equal to 360. And then to Z's capital account, and Z's capital account will be credited by 1200 into 2 upon 10, which is equal to 240. Fine. So this is going to be our journal entry. और इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया, यानी कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से चला जाएगा। रिवाइज बैलेंस शीट में हम इसको शो नहीं करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड 600, 360 और 240 से क्रेडिट हो जाएंगे। सो यू विल सी द नेट इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट कि 1200 का लायबिलिटी साइड में डिक्रीज हुआ और 1200 का ही लायबिलिटी साइड में इंक्रीज हो जाएगा बाय क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? अब बेटा लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट केस जो अभी हमने केस 1 ही डिस्कस किया, उसका उसके पार्ट में हमने ये किया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि वो डेबिट हो गया और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। अब कंटिन्यूइंग द सेम केस, यही केस है कि नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, लेकिन पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शो workman compensation reserve, workman compensation reserve in new revised balance sheet. Fine. लास्ट केस में जब न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिवाइज बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि हमने एंट्री करके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया था। इट वाज टोटली एग्जॉस्टेड। अब इस केस में नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कितना कॉम्पनसेशन अराइज हुआ, लेकिन पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को न्यू रिवाइज बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अगर ऐसा होगा और ये बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो बाद में तो ये रिजर्व न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर ये बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉस टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्योंकि उसका शेयर कम हो जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हु इज द गेनिंग पार्टनर
and who is the sacrificing partner. So let's calculate the sacrificing ratio. Old ratio minus new ratio. X की old ratio थी 5/10, new ratio हो गई 2/10. So if we take the LCM, this numerator is LCM is 10, numerator 5 minus 2, which is equal to 3/10. So it's a positive fraction, यानी कि x हमारा sacrificing partner है और ये sacrifice कर रहा है 3/10 of the total share of profit. Y का old share is 3/10, new share is also 3/10. So Y is neither sacrificing nor gaining. Now let's come to Z. आप x का कैलकुलेट करके देख लीजिए बेटा, 3/10 माइनस 3/10 आ रहा है y का, तो he is neither sacrificing nor gaining. Then z का old share is 2/10, new share is 5/10. So 2/10 minus 5/10, LCM is 10. न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा 2 minus 5 and the fraction is minus 3/10. अब ये क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि z का न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z is the gaining partner and he is gaining 3/10 of the total profits of the firm. अब बेटा अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि पार्टनर्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को न्यू रिवाइज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा. अब कितनी अमाउंट कॉम्पनसेट करेगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1200 का है, 3/10 is the sacrifice share and gain shared by respectively sacrificing partner and gaining partner. So rupees 360 will be compensated by the gaining partner to the sacrificing partner. गेनिंग पार्टनर इज Z, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर लेंगे Z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट, क्योंकि Y ने तो ना ही गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है. अमाउंट इज 360 and later on when this 1200 is distributed in the new profit sharing ratio, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको पहले ही 360 रुपीज एज अ कॉम्पनसेशन फॉर दिस रिजर्व मिल चुका होगा. अब क्या होगा बेटा कि अब जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही हो रही है. एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया जेड का कैपिटल अकाउंट, और एक्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया. तो जब न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट में बनेगी कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हो जाएगी एंड वी विल शो दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन द newly reconstituted balance sheet. Now let's discuss the second case. Second case says that if a claim on account of workman's compensation is estimated at rupees 150. That was the second case. ठीक है, अब क्या हुआ बेटा कि maybe some worker have met with an accident और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उसने क्लेम अराइज कर दिया फर्म के ऊपर कि मुझे तो एज अ कॉम्पनसेशन 150 रुपीज चाहिए. ठीक है, अब बेटे फर्म तो पहले ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना चुकी थी, तो 150 रुपीज का क्लेम फर्म वर्कर को दे देगी और जो बाकी बचा रिजर्व होगा दैट विल बिकम अ फ्री रिजर्व, यानी कि फर्म 1200 में से 150 रुपीज वर्कर को दे देगी और जो बाकी बचा रिजर्व होगा दैट इज 1050 अगेन will be distributed between the partners at the time of reconstitution of the firm
in the old profit sharing ratio, that is 5:3:2. Fine. And when we'll distribute it, then we will not show workmen compensation reserve in the new balance sheet, new revised balance sheet. Now, let us see how are we going to pass the journal entry. Now, workmen compensation reserve हमने पहले बोला credit balance होता है. अब workmen compensation reserve में से हमने 150 का claim देना है. तो हमारी entry क्या हो जाएगी? Workmen compensation reserve account debited to claim. देखिए क्लेम अराइज हुआ अभी दिया नहीं है, यानी कि ये जो रिजर्व है उसमें से 150 की लाइबिलिटी अराइज हो गई है. तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, तो हम लिखेंगे टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन द अमाउंट इज सी, रिजर्व की अमाउंट है 1200, क्लेम अराइज हुआ 150 का. तो जो बाकी 1050 रुपीज बच गए रिजर्व में, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो वी विल पास द एंट्री एज टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू वाई's कैपिटल अकाउंट and to Z capital account. Okay, let me write it here. I am going to insert it. मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है. So to Z capital account. Fine. So how we are going to distribute it? We are going to distribute 1050 into 5/10. So the share of X is 525. Fine. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से जो फ्री रिजर्व हो जाएगा 525 एक्स को मिलेंगे. नाउ 1050 into 3/10. So y is going to get 315. Fine. Y will get 315 and his capital account will increase by 315. And Z is going to get 1050 into 2/10, which is equal to 210. Fine. और Z का अकाउंट कैपिटल अकाउंट 210 से क्रेडिट हो जाएगा. तो अब इसका इफेक्ट देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया 1200 से, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में ये शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने तो इसको डेबिट कर दिया. और रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अब क्या होगा? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नजर आएगा. लेट मी शो यू हियर. जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे शो कर देती हूँ. देखिए जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे बेटे, तो ये तो नहीं आ रहा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. देखो मैंने डेबिट कर दिया 1200 से, क्रेडिट बैलेंस था, तो ये तो खत्म हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो क्लेम था, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो 150 से नजर आएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे. एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 525, Y का कैपिटल अकाउंट ट्रेड हो जाएगा 315 से, और Z का कैपिटल अकाउंट ट्रेड हो जाएगा 210 से. तो आपको ये देखिए, एक चारों का सम इज 1200. आपने लाइबिलिटी से 1200 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1200 इन वेरियस फॉर्म ऐड कर दिया. सो योर बैलेंस शीट गेट्स मैच्ड. Now let's come to the third case. Third case says if a claim on account of workman compensation is estimated at 2,250. Now you see that the claim is 2,250, which is greater than the amount in the compensation reserve. See, the claim on account of workman compensation, it is 2,250 rupees, which is greater than the amount of workman compensation reserve which the firm is maintaining at rupees 1200. अब क्या करें? क्लेम तो अराइज होगा. क्लेम देखो बेटा, क्लेम जब भी अराइज होता है ना, तो अभी हमने पे नहीं किया क्लेम,
तो क्लेम जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। अब हमारे जो क्लेम अराइज हुआ है वो 2250 का अराइज हुआ है, लेकिन हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1200 रुपीज ही हैं। तो बाकी जो क्लेम एक्सेस जो क्लेम अराइज हुआ 1050 रुपीज का, जो एक्सेस क्लेम अराइज हुआ 1050 रुपीज का, दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। भाई क्लेम अभी हमने बताया कि क्लेम क्या होता है, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। अभी आपने पे नहीं किया, वर्कर ने बस सिर्फ क्लेम अराइज किया है। सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, or increase in liability at the time of reconstitution of the firm is going to be debited in revaluation account. तो हमारी एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। फाइन, ये रिजर्व तो हमने पूरा यूज कर लिया टू गिव द कॉम्पनसेशन ना। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1200, fine, to claim on account of workman compensation, और क्लेम अराइज हुआ बेटा 2250 का। तो ऑब्वियसली 1050 हम कहां से देंगे, वी आर गोइंग टू गिव इट थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यही हमने किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 1050। और बेटा जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया तो 1050 का लॉस अराइज हो गया। अब जब 1050 का लॉस अराइज हुआ है तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस अमंग दी again all the partners in old profit sharing ratio. So when this loss is distributed, partners capital account will be debited and revaluation account will be credited. So this was my first entry जिसमें revaluation account को मैंने debit किया। Second entry में partners capital account debited, यानी कि X capital account debited, Y's capital account डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट आप पूरा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया ऑफ 1050 रुपीज का, that is going to be distributed between the partners in the old profit sharing ratio. So again 1050 into 5 upon 10, and this amount is 525. So X का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 525 से, Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1050 into 3 upon 10 which is equal to 315, और Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1050 into 2 upon 10 which is equal to 210. So this is the accounting treatment of workman compensation reserve. In the first case, no information was given. We distributed the whole workman compensation reserve in the old profit sharing ratio. In the second case, the claim was less than the reserve. हमने claim दे दिया और बाकी बचे workman compensation reserve को partners के capital account में distribute कर दिया in the old profit sharing ratio. In the third case, here the claim was 2250, which is more than the amount in the workman compensation reserve. तो जो excess claim था, that is actually equal to increase in liability. Increase in liability is debited to revaluation account. तो मेरी पहली एंट्री बन गई बेटा workman compensation reserve account debited. देखो डेबिट हो गया 1200 से, तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो गया। तो न्यू रिवाइज बैलेंस शीट में हम इसको नहीं दिखाएंगे। Then revaluation account is debited by the difference of the claim and the amount in workman compensation reserve, and to claim
क्लेम हमने बताया लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, सो दिस इज क्रेडिटेड. एंड फाइनली दिस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, देखो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे तो देयर इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करने के बाद हम इसको, इस लॉस को जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो which is equal to 5:3:2. I hope that the accounting treatment of workmen compensation reserve in all the cases is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you very much.